Hello and good evening, all of you, my friends. I hope you all are doing good. And today we'll discuss a topic which is very important to us, that is India's energy security. We all need energy for a sustainable life, and to life to sustain on earth, we need energy, be it by the sun or be it by the energy we create. So, thus, we'll see different context and different things around which revolves around India's energy security, and we hope that it will fulfill your needs in exams, and also you will get a hang of things which happens. So thus what is the context is that US has banned on Russian oil, and I'll just tell you that India is the third largest importer of oil in the entire world, and India's energy consumption is expected to grow 4.5% every year for the next 25 years. Because we are a growing population, our energy demand will grow. Because we are a growing economy, our energy demand will grow, and thus we need a lot of energy to sustain and to grow in this world. Thus, India will, you know, have to, or India will have to take care of its energy needs by various means. Okay, and it has also to think in mind about the uh, different sources of energy and the environment, that is sustainable development. So we have to grow while keeping in mind the sustainable development model, and thus that's a very big challenge for us. Okay, so India imports 80% of its oil needs and is the third largest oil consumer in the world. I told you. Now what is energy security? A lot of thing हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग को डेफिनेशन नहीं पता नहीं होती बेसिक। तो कभी भी एनर्जी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है, सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी क्या होती है ये लिखो। तो विल जस्ट सी अ डेफिनेशन ऑफ इट। इट इज़ द कंटिन्यूअस, यू नो it is a continuous availability of energy in varied forms in sufficient quantities and at reasonable rate। तो क्या ऐसी कंपोनेंट है? कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए और रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए। सो इन लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी फोकसेस ऑन सप्लाई चेन स्ट्रेंथनिंग इन लाइन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल नीड्स, what we call the sustainable development. And short term energy security focuses on the ability of the energy system to respond promptly to sudden changes in the supply and demand balance। ठीक है, मान लिया दो जगह हैं एक्स वाई। एक्स इज़ अ इंडस्ट्रियल टाउन, वाई इज़ अ what do we call a habitation place। तो of course x needs more energy than y, thus we have to balance out the needs of both of them। We'll just see some data around it। तो वाइल्स 5 लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इम्पोर्टर कंट्रीज, अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट तो चाइना है ऑफकोर्स, देन यूएसए, थर्ड इज़ अस, फोर्थ इज जापान, फिफ्थ इज साउथ कोरिया। तो टॉप कौन है? चाइना, फिर यूएसए, देन इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। एक्सपोर्टर कौन है? सऊदी अरेबिया ऑफकोर्स। सेकेंड इज रशिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रशिया। और यूएस वालों ने मना कर दिया है कि भैया हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। दैन इराक, कनाडा, यूएई, कुवैत, ईरान, ये सब ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट सऊदी अरेबिया, रशिया एंड इराक, टॉप 3 याद रखो। नो व्हेन वी द प्राइसेस ऑफ ऑयल इंक्रीजेस, then it because we import a lot of oil, it impacts our economy। I'll tell you how। We'll also give an example। First is the fiscal stress। उससे क्या होगा? फिजिकल स्ट्रेस कैसे होगा? जब भाई ऑयल महंगा होगा तो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उससे क्या होगा? हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। हम लोग अब ऑयल पैदा तो कर नहीं रहे हैं, ले ही रहे हैं और महंगा ले रहे हैं। जब महंगा लेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। ठीक है। राइजिंग फ्यूल सब्सिडीज़, अब सरकार देगी भी सब्सिडी तो कब तक देगी? ठीक है, या तो
मतलब जनता को खुश करने के लिए सरकार सब्सिडी देते रहे। भाई आज तेल मैं कह रहा हूँ $100 बैरल था, कुछ यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो $150 बैरल पहुँच गया, तो ये ₹50 किसी को तो बियर करना पड़ेगा ना। तो सरकार क्या करेगी, $25 की सब्सिडी देगी, $25 की वो $25 आपकी जेब पे इफ़ेक्ट डालेंगे। दस इट बिकम्स वेरी important to see all this and take into account the various trade deficits and rising current account deficits. Okay, so because it affects our economy and it also impacts the value of the bonds the government have, है ना। Moody's आपका और मॉर्गन स्टैनली वगैरह, उसको A-, A++, ABB ये देखा होगा ना आपने, ये बॉन्ड्स की रेटिंग होती है, उसमें ये सब भी देखा जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, सब जब इकनॉमी पे ये सब ज़्यादा होता है तो हमारे बॉन्ड की प्राइस भी कम हो जाती है, हमारी बॉन्ड्स की डिमांड भी कम हो जाती है, विच अगेन इफेक्ट्स द इकनॉमी ऑफ द कंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, नाउ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द प्राइमरी एनर्जी इन इंडिया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक इज ऑल्सो वन ऑफ देम। Inadequate domestic supplies of these hydrocarbons are forcing the country to increase its import bill. ओके, सेकंड इफेक्ट आता है सबसे, देखो दो इफेक्ट हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया, बस फिजिकल स्ट्रेस याद रखना, उसमें सब पॉइंट्स बना देना। सेकंड इज हायर इन्फ्लेशन। भाई देखो मैं बोल रहा हूँ गुजरात से आपको हिमाचल एक ट्रक भेजना है एक सामान का, पहले 10,000 रुपये का तेल लगता था, तेल महंगा हो गया, वही तेल 15,000 का लगने लगा। तो क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बढ़ गई लॉजिस्टिक्स में। अब ये 5,000 कैसे बियर होंगे, व्यापारी जो है वो तो अपनी जेब से देगा नहीं, ये सब लोगों पे आएंगे, तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। जो चीज़ पहले 10 रुपये की मिल रही थी वो अब 12 रुपये की मिलने लगेगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ द इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। नाउ वाई डू वी नीड अ हॉलिस्टिक अप्रोच इन एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी। अब देखो हॉलिस्टिक का मतलब होता है कि हमें बहुत सारे पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें अपनी एनर्जी डिमांड फुलफ़िल करनी है। भाई हम लोग 17% है वर्ल्ड पॉपुलेशन के, और हमारे पास सिर्फ 0.8% है नोन वर्ल्ड के जो ऑयल एंड नेचुरल रिजर्व है। ये अगर हमारे पास 17% होते तो भी हमारा काम बन जाता, लेकिन हम हैं 17%, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, 0.8%। दैट मीन्स दैट देयर इज़ अ ग्रेट स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन आवर कंट्री। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज, अभी वो कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस निकाल रहे हैं, देखो कितनी वायबल रहती है वो, बट फ़िलहाल बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। Now today oil accounts for 36% of the country's primary energy use. This figure is set to rise both in absolute and in percentage terms. I have already told you. India's domestic production is not sufficient to meet its demand. Very important thing. मैं आपको बताया कि डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। इसलिए आज से कई सालों पहले अगर माई फ्रेंड्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश विल कैन टेल यू दैट वहाँ पे लोड शेडिंग होती थी बहुत ज़्यादा, 6 घंटे 12 घंटे 18 घंटे तक की लोड शेडिंग होती है बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया के। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी एनर्जी ही नहीं है देने के लिए लोगों को, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क्स। बिकॉज देयर इज़ इलेक्ट्रिसिटी इन दिल्ली डज नॉट मीन दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ एवरीवेयर 24 आवर, ठीक है। बिकॉज वी हैव प्राइवेट प्लेयर्स इन दिल्ली, और बहुत जगह अभी भी पब्लिक या सरकार ही बिजली प्रोवाइड कर रही है। तो हर चीज़ जो है दिमाग में लेके चलनी पड़ती है, सरकार को भी और लोगों को भी, ठीक है। 10 इंडिया ऑलरेडी इम्पोर्ट्स 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड्स। समझ रहे हो, मतलब अगर हमें 100 गैलन तेल चाहिए तो 80 हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, 20 ही बना पा रहे हैं, बॉम्बे आई दिग्बोई यहाँ सबसे नहर काटिया, ठीक है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। तो हॉलिस्टिक अप्रोच की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी डिमांड करनी है। टू एलिवेट पॉवर्टी, ऑफ कोर्स जब महंगाई बढ़ेगी तो मोर पीपल विल गेट इनटू द पॉवर्टी, ठीक है। और हमें अगर लोगों को पॉवर्टी से बाहर रखना है तो हमें 8 to 10% ग्रोथ रेट चाहिए ही चाहिए। वी नीड अ ग्रोथ रेट ऑफ 8 to 10%, एंड टू मीट दैट वी नीड एनर्जी।
to transform Indian economy into an export economy. Okay, to transform, I'm so sorry for the disturbance, to transform Indian economy into an export economy, the energy security needed to become manufacture and assemble point of the global economy. We should be a net exporter of energy, not a net importer. Okay, and we will one day, don't worry. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज ऑल्सो नीडेड. भाई हम ऑयल पे ही डिपेंड नहीं रह सकते, हमें गैस भी चाहिए, क्योंकि गैस देखो जहाँ जहाँ गैस है वहाँ गैस चीप है. ठीक है, हमें सिलेंडर बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो गैस चाहिए, न्यूक्लियर चाहिए, हर टाइप का एनर्जी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए. वी हैव टू एलिमिनेट कोल बिकॉज वी हैव अ प्रेशर टू मेंटेन इन्वायरमेंट ऑल्सो. तो दस वी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी आर इन अ फिक्स that we need to develop, but we need to develop sustainably. Okay, so India needs to diversify its energy resources. Presently most of the oil and natural gas comes from Middle East, which is a hostile region. ठीक है, अभी देखो यूक्रेन में कुछ दिक्कत, रशिया से हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते थे, अभी रशिया में दिक्कत हो गई. यूएस बोलता है हम लेंगे नहीं यूएस से. हमारी तरफ भी दिख रहा है कि हम भी बोल दें कि हम भी नहीं लेंगे, लेकिन वी हैव टू बैलेंस आर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द डिप्लोमेसी सेक्शन दैट we need to balance our needs first. The priority should be our people. भाई कहने के लिए देखो, डिप्लोमेसी भावनाओं से ही नहीं चलती है, डिप्लोमेसी से ही चलती है. ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज़ टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल्ड मैन पावर. ठीक है, अभी हमारे पास देखो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. अभी मैं अगर कमेंट सेक्शन में पूछूं किस किस के घर में गैस पाइपलाइन आ रही है, तो आई डोंट थिंक दैट 1 in 100 विल से यस मेरे घर में. तो दैट भाई हम गैस तो तब पहुंचाएंगे ना जब गैस के लिए पाइपलाइन होगी. जब गैस के लिए पाइपलाइन नहीं होगी तो आप गैस पहुंचाओ कैसे? तो वी नीड टू डेवलप दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू मेंटेन दैट गैस पाइपलाइन वी नीड गैस पाइपलाइन इंजीनियर्स which are very less in India. All of them go to Saudi Arabia because they get good packages there. So we need to keep them here. Thus we need some skilled manpower also. And सबसे important क्या है? Secure energy requirement through global partnership. हाउ कैन वी डू इट? भाई हम अपना तो बनाएं, आप पार्टनरशिप भी करें. लाइक इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम मिडल ईस्ट, इसको भी हम डिवर्सिफाई करें. भाई ओमान से भी लें, यमन से भी लें, सऊदी अरेबिया से भी लें, थोड़ा थोड़ा सबसे लें, कतर से लें, है ना, थोड़ा थोड़ा हर जगह से लें. देन इज़ आई इज़ वट ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन. देन इज़ तापी. अब हम लड़ते ही रहेंगे पाकिस्तान से, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है. तो यार देखो हर चीज़ सोचनी पड़ती है. ठीक है, आपको अपना बेनिफिट देखना है. आपको किसी कंट्री को कुछ कह के नहीं मिलेगा. आप उसको प्यार देखो, घर में कोई नाराज़ हो जाता है अगर, तो आप उससे लड़ाई नहीं करते. देखो अगर लड़ाई करोगे तो घर में कांस्टेंट टेंशन बनी रहेगी. तो आप उसे समझाते हो, आप अलग अलग ट्रिक्स इस्तेमाल करते हो, और वही अच्छा होता है दोनों के डेवलपमेंट के लिए. देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज तापी प्रोजेक्ट. तापी इज़ तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया गैस पाइपलाइन. हाउएवर इन रिसेंट टाइम्स ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडियाज़ एनर्जी पार्टनर, जैसे यूएस ईरान में दिक्कत रहती है. मैंने कहा ना ये रशिया, भाई हम तो रशिया से भी ऑयल लेते हैं, यूएस से मैंने मना कर दिया, हम तो लेंगे नहीं. अब रशिया यूएस से हमारी तरफ देखेगा, भैया इंडिया ब्रो आप हमारे क्वाड में मेंबर हो, तो अगर यार आपको बना रहना है तो आप भी मना करो. बट यार हमें एनर्जी चाहिए ना भाई, हम यूएस नहीं है ना. यूएस को डेवलप हो चुका है, उनकी तो पर कैपिटा इनकम हमारे से ज़्यादा है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, वहाँ के लोग मजे लेते हैं. ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते. वी हैव टू बैलेंस आउट आवर नीड्स ऑल्सो. तो इंडिया हैज़ टू रिड्यूस ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम ईरान ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम यूएस. ये हो चुका है, हमें ऑयल इम्पोर्ट्स रिड्यूस करने पड़े. तो हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं? हमने कहा कि पहले हमने देखा कि क्यों हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है और कैसे कर सकते हैं. अब हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं? तो एक स्टेप तो हमने लास्ट में ही देखा कि भाई हम एनर्जी पार्टनरशिप कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं एनर्जी नीड्स में. जो पॉलिसी हो हमारी हॉलिस्टिक हो, कि वो सबको ले. ठीक है, हर चीज़ को कंसिडरेशन में ले, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, इन्वायरमेंटल हो, डिप्लोमेटिक हो, ब्यूरोक्रेटिक हो, जो मर्जी हो. ठीक है, हर चीज़ को हमें एक सामंजस्य बना के चलना है. ठीक है, एक परमानेंट एनर्जी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में. भाई मैं कहता हूँ कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई एक्स स्टेट है, हिमाचल एक स्टेट है, या सॉरी उत्तराखंड एक स्टेट है जो छोटा सा स्टेट है. ठीक है, और उसके बाद जो है बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं. इनफैक्ट उत्तराखंड सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू यूपी, दिल्ली थ्रू इट्स टीडी प्रोजेक्ट.
तो हमें ऐसे और वर्क करना है भाई। उत्तराखंड की नीड्स तो पूरी हो ही रही हैं, तो बट हमें जहाँ अगर हमें पता लगेगा कि यूपी में ज़रूरत है, हम तो उत्तराखंड से अगर बिजली दे पाएँ तो बेटर रहेगा, रादर देन हम कहीं तेलंगाना आंध्र प्रदेश से यूपी के लिए वो लेके आएँ। और बेटर है कि हम यूपी में भी ऐसे और न्यूक्लियर प्लांट्स, देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में पोटेंशियल कम है क्योंकि वहाँ ज़्यादा बहुत सारी रिवर्स बहती हैं, लेकिन वहाँ डैम लाना उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा पानी यूज़ होता है। तो बेटर रहेगा कि हम वहाँ पे, भाई राजस्थान में जैसे विंड मिल बहुत अच्छा चलता है, यूपी में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर बहुत अच्छा चल सकता है। तो ऐसे ही हमें वेरियस जोग्राफिकल सिचुएशंस के लिए वेरियस प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसको हमें एक अलग से सॉल्यूशन देना है, हमें एक होलिस्टिक सॉल्यूशन देना है, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन देना है। वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच नहीं रख सकते हम, इंडिया में तो खासकर। तो उसके लिए हमें डेटा भी चाहिए। डेटा कैसे आएगा? एविडेंस बेस्ड अप्रोच से, ठीक है। हमें डाटा कॉन्स्टेंटली कलेक्ट करने लगना। मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम एक्स में 22 किलोवाट की ज़रूरत है, एग्जाम है, वाई में 44 किलोवाट की ज़रूरत है, हमारे पास है 60 पता लग रहा है हमने यहाँ 24 भेज दी, यहाँ पे तो यहाँ 2 ज़्यादा चलेगी, यहाँ हमने 42 ही भेज पाए, यहाँ तो 2 कम होगी। तो ये ज़रूरी है, कैसे आएगा आपका? एम्पेरिकल डाटा से, ठीक है, कांस्टेंट मॉनिटरिंग से। तो हमें एविडेंस बेस्ड अप्रोच चाहिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। देन प्रमोशन ऑफ न्यूरेबल एनर्जी, ऑफ कोर्स वो मैंने आपको बता ही दिया कि वी हैव अ टारगेट ऑफ 175 गीगावाट का है। 175 को हमने कैसे डिवाइड किया है? 100 सोलर से, देन इसमें 5 छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से है, कुछ विंड से है, और एक और चीज़ है, आई एम फॉरगेटिंग, आई एम सो सॉरी, आई विल टेल यू। तो ये ऐसे देख लेना इसको, ऐसे 100 सोलर से है, ठीक है, ये तो कंफर्म है। 5 स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक से है, अब बचा 70-40 शायद उससे है, विंड से है, एंड 30 आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली किससे, प्लीज़ सी। ओके, आई एम सो सॉरी। सो दिस इज़ हाउ यू नो। और ये हमने रीच करना है 2022 पे, और हम इस टारगेट से अभी बहुत पीछे हैं, और हमें इसे 500 गीगावाट करना है बाय 2030। सी वी कैन सेट टारगेट्स फॉर आवर सेल्स। हम ना स्टडी के टारगेट भी कर सकते हैं, मैं 18 घंटे पढ़ाई करूँगा, बट दे शुड बी रियलिस्टिक, दे शुड बी अचीवेबल, ठीक है। अब वही है ना, हमारे बचपन में सिखाया गया घर में कि भैया ऐसा करो कि 100% की सोचो तब 80 आएगा। बेटर है कि 80 का सोचो और 80 अचीव करो, वो ज़्यादा सही अप्रोच है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी करना है। अभी हमारे 3% एनर्जी जो वो सिर्फ न्यूक्लियर 3% एनर्जी आती है न्यूक्लियर से, उसको हमें 20-25% करना है, ठीक है। डॉक्टर कलाम ऑल्सो सेड दैट। एंड उसके लिए क्या होगा? इन्वेस्टमेंट और फिनेंस लगेगा भाई, उसका भी वो करना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जाओ, अपना रिजर्व्स को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, टैक्स कंप्लायंस बढ़ाओ, ऐसे ही तो पैसा आएगा भैया। आप लोग भी सब टैक्स दिया करिए, है ना। जब देश में टैक्स आएगा तो उसी से फिर इन्वेस्टमेंट होगी, उससे फिनेंस होगा, उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और उसी से फिर एनर्जी की डिपेंडेंस हमारी कम होगी और देशों पे। एंड ऑफ कोर्स इफेक्टिव एनर्जी डिप्लोमेसी, आई टोल्ड यू दैट हमें रशिया से भी बैलेंस आउट करना है, यूएसए से भी बैलेंस आउट करना है, मिडल ईस्ट से भी बैलेंस आउट करना है, जापान से भी बैलेंस आउट करना है, पाकिस्तान से भी बैलेंस आउट करना है। तो वो क्या है वहाँ पे? एनर्जी डिप्लोमेसी। दिस इज़ द कीवर्ड। व्हाट इज़ द कीवर्ड हियर? दैट इज़ एनर्जी डिप्लोमेसी। वी नीड एनर्जी डिप्लोमेसी। So we'll just conclude in one line that India's energy policy needs to be more inclusive and more domestic, and we have to take into consideration the international settings, because we are a fast growing economy and we need energy to develop and to grow ourselves. Okay, and I think that will be all for today. Thank you all of you for watching, and we shall see you tomorrow. Take care and good night.